Hello student, Physics class 12, chapter 7, alternating current, part 2. Now today's topic is RMS value, that is root mean square. Root mean square means first of all you have to find the square, then you have to find the mean. Mean means average. After that you have to calculate the root. So whatever the value of current we have, then the value of current I is equal to I naught sine omega t, and its average value I average we have done in the previous value is 2 I naught upon pi, and same we can find out for the voltage V naught या E naught, whatever will be the value for AC current, sine omega t will be calculated V average. With the same process we can find V naught pi. This is for half cycle, and for the full cycle I average for full cycle is 0. This is for full cycle. This much we already have done in my previous video. Now to calculate the RMS value calculate करने के लिए what we have to do it, I RMS. First what we have to do it, we have to scale the current. First of all you have to scale the current, then afterward you have to take the average current, and then you have to apply the root. This is the process for finding the RMS value. Same we can do with the voltage also or EMF. ERMS अगर आपको निकालना है तो what we have to do it, first we have to do the square of the voltage, then we have to find the average. First square, then average, and afterward you have to apply the root. Then you have to apply the root. This is the method to calculate the RMS value. Let us find what is the RMS value for current. To find RMS value for current. Now see the derivation portion of this. Now to find the RMS value for current, so derivation portion, how to calculate the RMS value for the current. First of all I is given, I आपका है I is equal to I naught sine omega t. So for RMS value, first of all you have to scale the RMS value. तो I RMS के लिए what you have to do it, first you have to do the scale, that means I naught sine omega t square, then you have to find the average, then instead of putting the square root I will write half here for convenience in the calculation. Now you already know that to find the average निकालने के लिए what we have given the formula for anything, I average के लिए we have given the formula integration I dt upon integration on dt. This formula we have done in the previous video. So applying the formula here for the average value. So average value के लिए you have to write the formula integration, because we are doing for the full cycle. So I naught square कर रहे हैं sin square omega t dt, time is 0 to t upon 0 to t dt, and later on half. Clear? Now you have to solve this. So this is a constant term, it will come out from the integration sign. So I naught
square will come out from the integration sign, and for this we'll do the directly calculation, because otherwise the calculation become too long. So integration of dt is t, and upper limit minus lower limit करेंगे तो you will get only t. So I'm directly put the t here. Now rest of the things will come here. So integration of, अब है sin square omega t. So sin square omega t cannot be do the integration directly. We have to put the formula for sin square theta. So sin square theta is equal to 1 minus cos 2 theta upon 2. This is a trigonometrical identity which we are using to solve the sin square omega t. थीटा की जगह आपने ओमेगा टी लगा देना है. So the formula for sin square theta को डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते, you have to put it like here. तो 1 minus cos 2 omega t 0 to t. सॉरी, we have already integrate, अभी तो इंटीग्रेट करना है इसको, अपॉन 2 एंड dt, और इन सब का होल पावर हाफ. डोंट फॉरगेट टू राइट हाफ. नाउ in the next step what we have to do it, I naught square upon t which is already out. So अब आपने इसे अलग अलग करना है इंटीग्रेशन. 1 is 1 dt का इंटीग्रेशन रहेगा. दिस इज योर t. 2 को भी हम बाहर ले लेते हैं. दिस 2 विल कम आउट हियर. 2 को भी बाहर लेते हैं. t cos ओमेगा t का हो जाएगा sin ओमेगा t sin 2 ओमेगा t, एंड ओमेगा t का हो जाएगा 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन हो जाएगा अपॉन 2 ओमेगा, एंड अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, और ये कंबाइन सारों को अंडर करना है हाफ के. ठीक है, दिस ऑल द मैथ्स, पूरा मैथ्स कैलकुलेशन करना है. वी हैव टू डू द कंप्लीट मैथ्स, और बहुत ध्यान से करना है, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. सो I naught square upon 2 now after doing the integration, अब upper limit, अब इस पूरे में wherever we have a small t replace करेंगे upper limit minus lower limit. So upper limit is your t minus sin 2 omega t upon 2 ओमेगा, माइनस लोअर लिमिट इज योर कंप्लीट 0 हो जाएगा, बिकॉज ये भी 0 हो जाएगा एंड t यहाँ पे भी 0, तो दिस कंप्लीट फिगर बिकम 0, एंड पावर आपका हाफ. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t, t एज इट इज लिखेंगे, एंड माइनस साइन 2 omega. So we already have done t is equal to 2 pi by omega. ये आपने, we already have done it. T is equal to 2 pi by omega. Put the value of t over here. ये 2 ओमेगा भारी रखिए, एंड t को आपने यहाँ लिख देना है 2 pi by omega. Okay, minus 0 half. So now here we just cancel out the things. ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड now further calculation में whatever we are getting, I not square upon 2 pi. Now see here, here we are getting sin 4 pi अपॉन 2 ओमेगा. सी और माइनस 0 को जस्ट रिप्लेस इट, और ये आपका पावर कंप्लीट हाफ है. नॉट 2 पाई. 2 पाई मीन्स इफ यू कैलकुलेट 4 पाई, 2 पाई, 8 पाई, दैट मीन्स 2 पाई मीन्स द साइकिल कंप्लीट्स. मीन्स अगर आपका
करंट इस तरह से फोकस, दिस इज योर पाई एंड दिस इज योर 2 पाई, 2 पाई के 4 पाई मीन्स अगेन यू आर गेटिंग दिस वैल्यू। तो साइन 360, व्हाट द 360 की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 इज 0, साइन 360 इज 0, 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई, तो 2 की मल्टीपल्स में जो भी वैल्यूज आएंगी पाई की दैट बिकम 0, दैट मीन्स दिस साइन 4 पाई इज योर twice of 2 pi, तो 2 pi पे sin 360 is your 0, तो this whole term will become 0, तो ये आपका पूरा टर्म आपका 0 हो जाएगा। Now see the next step, so I RMS value which is equal to I naught square upon 2t multiply only t is left here, एंड ये पूरा आपका अभी भी स्क्वायर रूट के अंदर है, हाफ के अंदर है। सो टी से टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पावर हाफ। नाउ आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन root 2. This is the value of IRMS. RMS value of current is I naught upon root 2. Similarly, we can find VRMS. VRM with the help of same procedure we can do is V naught upon root 2. So by the same process you can find the IRMS value and the VRMS value. So now I am telling you the significance of RMS. इसका इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ RMS जो अभी हमने निकाली। अगर V वोल्टेज है तो V नॉट साइन ओमेगा टी इज द वोल्टेज, और इसका जो VRMS हम निकाल रहे हैं, वी हैव कैलकुलेटेड V नॉट अपॉन रूट 2, एंड करंट अगर I है I नॉट साइन ओमेगा टी, तो IRMS वी हैव कैलकुलेटेड राइट नाउ I नॉट अपॉन रूट 2। अब ये V नॉट और I नॉट है क्या, दिस इज द पीक वैल्यू। So if we draw the, because it is a sinusoidal graph, so if we draw the graph of V और I with respect to time t, अगर हम बनाते हैं, so ये जो वैल्यू होती है, this is the peak value. So for current के लिए I नॉट हो जाएगी एंड वोल्टेज के लिए आपका V नॉट हो जाएगी, this is the peak value. Now अब इसका significance क्या है, what is the significance of RMS value? Now you have seen that in our household equipments the current which is coming, it is our 220 volts. You have seen in many equipments 220 volts and 50 hertz में आता है। So what is the 50 hertz? 50 hertz is the frequency. Frequency means number of complete wave in 1 second. तो जो हमारे घरों में करंट आ रहा है 220 वोल्ट का, वो 50 हर्ट्ज पे आ रहा है। 50 हर्ट्ज मीन्स दिस इज 1 साइकिल, सेकेंड साइकिल, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, मीन्स इस तरह की 50 साइकिल्स आ रही है इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर आपकी ये वैल्यूज आ रही है। नाउ अब 220 वोल्ट क्या, इट इज नॉट योर पीक वैल्यू, ये पीक वैल्यू तो है नहीं, और ना ही एवरेज करंट है, बिकॉज करंट तो वेरिएबल है अबाउट द, बिकॉज करंट और वोल्टेज क्या है, ये हमारी वेरिएबल है, इट इज ए साइनसोइडल ग्राफ है, इट कीप चेंजिंग। तो ये 220 वोल्ट एक्चुअल है क्या, ये 220 वोल्ट आपकी VRMS है, दिस इज योर VRMS। सो VRMS जो हुआ, तो ये एक्चुअली VRMS आता है आपका विच इज 50 हर्ट्ज। इंडिया में इन इंडिया वी आर गेटिंग 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज की साइकिल, मतलब 1 सेकेंड के अंदर करंट जो है 2 बार 0 हो रहा है, मीन्स करंट एक सेकेंड के अंदर करंट 2 बार 0 हो रहा है, एक बार यहाँ हो रहा है 0 और एक बार यहाँ 0 हो रहा है। सो
50 हर्ट्ज की है हमारी फ्रीक्वेंसी, दैट मीन्स करंट 100 टाइम्स जीरो हो रहा है। मीन्स जो हमें करंट मिल रहा है, जो आपकी ट्यूबलाइट ग्लो कर रही है, तो ये 100 टाइम्स एक सेकेंड में 100 टाइम्स जीरो हो रही है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी फास्ट होती है वी कैन नॉट सी दैट, वी बहुत अच्छी तरह से नहीं देखते। इवन द जो हमारा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं या स्टेबलाइजर होते हैं, वो भी इस चीज को नहीं पकड़ पाते, बिकॉज द फ्रीक्वेंसी इज वेरी हाई एंड जो ड्यूरेशन है इट इज इन 1 सेकेंड, सो इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। नो सी VRMS क्या है, VRMS में आपका क्या है, दिस इज योर VRMS वैल्यू है। सो ये एक्चुअली कितना वोल्ट है, ये VRMS 220 वोल्ट से ज्यादा मिलते हैं। लेट्स सी किस तरह से ज्यादा मिल रहा है। सो VRMS वी हैव कैलकुलेटेड इज V0 अपॉन √2 एंड V0 जो हमारी की पीक वैल्यू है विच इज इक्वल टू VRMS इंटू √2 एंड VRMS अगर हम इसको 220 ले रहे हैं, 220 वोल्ट इंटू √2 को व्हेन वी मल्टीप्लाई इट विल अप्रोक्सीमेटली कम 311 वोल्ट। मतलब जो हमारी पीक वैल्यू है, V0 क्या है हमारी पीक वैल्यू, दिस इज अवर पीक वैल्यू, जो हमारी पीक वैल्यू है दैट विल अराउंड 311 वोल्ट, बट स्टेबलाइजर वो उसको नहीं पकड़ पाता क्योंकि वो इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर आता है, हाई फ्रीक्वेंसी पर आता है, सो इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे कभी भी आपने जो 220 वोल्ट दिया है, इट इज नॉट द वोल्टेज, नॉट द पीक वैल्यू नहीं है, इट इज VRMS वैल्यू है। और जो अप्रोक्सीमेटली हमारा जो घरों में करंट आ रहा है वो दैट इज 311 वोल्ट आ रहा है। सो 311 टाइम्स हमारा जो करंट है, सॉरी जो वोल्टेज है वो 311 टाइम्स 1 सेकेंड में होती है, और वो हमारा स्टेबलाइजर भी कैन नॉट एबल टू डिटेक्ट इट। सो VRMS V0 जो पीक वैल्यू है वो आपकी 1 सेकेंड के अंदर 100 टाइम्स पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, पॉजिटिव नेगेटिव इट इज इन 1 सेकेंड, और ये स्टेबलाइजर भी आपका कैच नहीं कर पाता। नाउ फॉर द एग्जाम पर्पस, अगर एग्जाम के अंदर अगर आपको इफ V की वैल्यू गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है, आपको यही नहीं पता है कि V क्या है, V एवरेज है या फिर V मैक्सिमम वैल्यू है या VRMS है। सो एवरी टाइम अगर V गिवन नहीं है एग्जाम के अंदर, तो यू हैव टू राइट इट एज VRMS लेना है आपने न्यूमेरिकल्स में। सो अगर V स्पेसिफाई नहीं कर रहे कि वो एवरेज है या पीक वैल्यू है, तो यू ऑलवेज कंसीडर इट इज VRMS फॉर द न्यूमेरिकल पर्पस। सो इन एग्जाम्स इफ द क्वेश्चन कम कि यू हैव टू फाइंड 220 वोल्ट है, इसका पीक वैल्यू निकालिए, तो पीक वैल्यू निकालने का दिस मेथड, पीक वैल्यू निकालने का क्या मेथड आपका VRMS अपॉन 220, बिकॉज ये जो वैल्यू है इट इज अ RMS वैल्यू, तो ये आप निकाल लेंगे, V0 निकाल लेंगे। सो वंस योर V0 विल कैलकुलेटेड, अगर आपसे पूछता है तो V एवरेज, तो एवरेज के लिए यू ऑलरेडी नो वंस द V0 विल कैलकुलेट, तो यू कैन कैलकुलेट द एवरेज टू V0 अपॉन पाई। और अगर करंट के लिए पूछा जाता है सो यू कैन कैलकुलेट 2I0 अपॉन पाई। सो एग्जाम्स में ये हमेशा याद रखना, अगर V कुछ भी गिवन नहीं है दैट विल बी द RMS वैल्यू, और अगर वो 220 वोल्ट हो रहा है तो दैट इज योर VRMS की बात कर रहा है, इट इज नॉट द पीक वैल्यू। पीक वैल्यू निकालने का ये मेथड है आपका। अलग अलग 220 वोल्ट के अलग अलग वोल्टेज की अलग अलग पीक वैल्यूज निकलेगी। Remember this for examination point of view. Now further in the significance of RMS value में let us consider कि एक रेजिस्टर है R, उसमें से एक हम करंट फ्लो I फ्लो करवा रहे हैं, उसकी वैल्यू है I is equal to I0 sin omega t। नाउ
we have to find the energy dissipated. डिसिपेटेड का मतलब होता है एनर्जी कितना यूज हुआ या एनर्जी कितना वेस्ट हुआ इन रजिस्टर इन टाइम टी, टाइम टी में कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई है. सिंस द करंट इज वेरिएबल, अब वेरिएबल करंट है तो इसमें से जो करंट पास कर रहा है वी कैन नॉट कैलकुलेट फॉर दैट, क्योंकि वो बार बार चेंज हो रहा है. सिंस इट इज अ साइनसॉइडल ग्राफ है तो बार बार चेंज हो रहा है. तो व्हाट वी आर डूइंग कि हम एनर्जी कितनी खर्च हुई इसके अंदर या इसके अंदर कितनी डिसिपेट हुई, वी हैव टू फाइंड द एनर्जी फॉर स्मॉल टाइम dt में. एक स्मॉल टाइम dt ले लेते हैं, इंस्टेंटेनियस ले लेते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल कितनी एनर्जी डिसिपेट हुई. सो वी हैव ऑलरेडी डन दैट कि E इज इक्वल टू होता है आपका I स्क्वायर R T. Since this formula for the DC, if it is a constant current that we already have read कि E is equal to I स्क्वायर R T, ये होता है कांस्टेंट करंट के लिए. बट अगर हमें स्मॉल टाइम इंटरवल dt के लिए लेना है तो वी कैन कैलकुलेट स्मॉल टाइम इंटरवल में एक dt टाइम में स्मॉल एनर्जी डिसिपेटेड हुई एंड इन अ टाइम इंटरवल dt. सो अगर हमें टोटल एनर्जी निकालनी है तो व्हाट विल डू द इंटीग्रेशन. सो टोटल एनर्जी डिसिपेट होगी. फॉर द वेरिएबल के लिए कैसे करते हैं कि एक बार छोटे का निकाल लेते हैं एंड इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल का आपका निकल कर आ जाएगा. सो आर तो कांस्टेंट है, इट विल कम आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन साइन I स्क्वायर dt. नाउ वी हैव डन IRMS, हमने करा है कि इट इज अ I का स्क्वायर, उसका एवरेज और उसका स्क्वायर रूट. ये हमारा प्रोसेस है IRMS निकालने का. Now IRMS can be written as एवरेज निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर dt अपॉन dt. ये हमने एवरेज निकालने के लिए ऑलरेडी कर चुके हैं. तो एवरेज ऑफ I का ये मेथड है I स्क्वायर का. करंट आपका I स्क्वायर है तो उसका एवरेज निकालने का ये मेथड है. नाउ स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, तो IRMS इसको स्क्वायर करेंगे तो विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर dt अपॉन dt. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ I स्क्वायर dt can be written as IRMS का स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन ऑफ dt का क्या आ जाएगा इनटू t. नाउ रिप्लेस दिस वैल्यू ओवर हियर. सो एनर्जी जो डिसिपेट होगी दैट विल बी इज इक्वल टू r इंटू IRMS स्क्वायर इंटू t. एंड so energy which is equal to IRMS square RT, ये वैल्यू हमारी निकल कर आई है. सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंट RMS कि करंट अगर वेरिएबल है तो उसकी एनर्जी अगर DC कांस्टेंट होता है तो एनर्जी होती है I स्क्वायर RT. इफ द करंट इज कांस्टेंट तो उसकी वैल्यू आपकी ये रहती है. और अब हमने क्या करा है यहाँ पे RMS डाल दी वैल्यू, RMS वैल्यू डाल दी क्योंकि एनर्जी हम पहले स्मॉल टाइम इंटरवल का निकाला, उसके बाद हमने इंटीग्रेट करके देखा वो ही वैल्यू एनर्जी की निकल कर आ गई. तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व दैट कि करंट आपका चाहे वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, व्हेन इट इज पासेस थ्रू अ रजिस्टर तो वैल्यू जो करंट की जो एनर्जी डिसिपेट होगी वो सेम होगी वेदर इट्स अ डायरेक्ट करंट और AC करंट. तो यहां पर हम लिख सकते हैं IRMS, कैन राइट इट हियर. सो तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ RMS वैल्यू की क्या है आपकी कि जो भी करंट वेदर इज ए कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट मतलब अगर वो DC सोर्स से आ रहा है तो I स्क्वायर RT रहता है एंड
इफ इट इज अ वेरिएबल, उसकी भी वैल्यू हमने निकाल के देखी, वो भी सेम वैल्यू आती है. सो तो यहाँ पे करंट कौन सा रहेगा, ये आपका IRMS करंट है, क्योंकि उनकी जो वैल्यू होगी, तो एनर्जी डिसिपेटेड हो रही है व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू अ रजिस्टर, दे बिकम सेम. Once again I am going to revise this one. What is the significance of RMS? RMS का significance क्या है? So ये जो एनर्जी है, दिस इज फॉर द डायरेक्ट करंट, कांस्टेंट करंट के लिए. बट अगर सिंस हमारा करंट AC आ रहा है, AC में इट्स अ साइनसॉइडल ग्राफ है, तो ये इट्स अ वेरिएबल करंट. अब इसका निकालने का क्या तरीका है कि पहले आप स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए निकालिए और उसको टोटल कर दीजिए, और उसके बाद जो एनर्जी आएगी वो सेम आएगी. सो दिस वी हैव डन विद द हेल्प ऑफ, अगर हमने यहाँ पे कोई मीटर लगा रखा है विच कैन कैलकुलेट योर एनर्जी, तो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व दैट कि एनर्जी वेदर इट्स फ्रॉम द डायरेक्ट करंट और फ्रॉम द AC करंट, द एनर्जी जो डिसिपेट हो रही है दैट रिमेन्स द सेम, द वैल्यू रिमेन्स द सेम. So this is the importance of RMS value. Okay student, today I just end up my session here. We continue this topic in our next video.